Preemptive scheduling. Preemptive scheduling means when a process enter into processor for executions, it may be released by another process. In the last class, I have discussed non-preemptive scheduling, which consists of FCFS, SJF and priority based scheduling. In this type of scheduling, that is in non-preemptive scheduling, a process whenever enters into the processor, it cannot be released until its terminations. In preemptive scheduling, I will discuss shortest job first in preemptive version and round robin scheduling in this lecture. Determining the length of next CPU burst. CPU burst का टाइम that is प्रोसेसर एग्जीक्यूशन टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला जैसे कि आपको दिख रहा है, Tn, small tn is the actual length of the CPU burst and capital Tn plus 1, that is predicted value for the next CPU burst. The formula is stated as follows: Tn plus 1 is equal to alpha into small tn plus 1 minus alpha into capital Tn. Capital T is the time, that is predicted value, that is probabilistic value. Small tn is the statistical recorded value. The value of alpha is in between 0 and 1. In this way, the next CPU burst is estimated. बेसिक कॉन्सेप्ट, एसजेएफ एल्गोरिदम हम लोग देख चुके हैं. एसजेएफ एल्गोरिदम में सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा जॉब है, उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है. हम लोग इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन एसजे देख चुके हैं. देयर आर टू स्कीम्स ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. फर्स्ट इज नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स once the CPU is given to the process, it cannot be preempted until it completes its CPU burst. And in preemptive, that is, if a new process arrives with a CPU burst length less than the remaining time of the current execution process, it may preempt. This scheme is known as shortest remaining time first. That means, मान लीजिए कि कोई जॉब, शॉर्टेस्ट जॉब, कोई एक टाइम पे एट द पर्टिकुलर टाइम एक जॉब आया, वो शॉर्टेस्ट है. लेकिन अगर कुछ देर के बाद अगर दूसरा शॉर्टेस्ट जॉब आ गया, तो पहले जो शॉर्टेस्ट जॉब है उससे अगर ये छोटा है, तो पहले का जॉब वो सस्पेंड करना पड़ेगा, और जो नया जॉब है जिसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कम है, वो प्रोसेसर में एंटर करेगा. तो इसी का नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. ये एक प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है. पहले हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. जैसे कि ये है नॉन प्रीएम्प्टिव एसजे. इसमें सभी प्रोसेस साइमल्टेनियस अराइव हुआ है. इसमें 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 and P4. Their burst times are 6 unit, 4 unit, 1 unit and 5 unit. All the arrival times at 0th time interval. This is a non-preemptive shortest job first, which I have discussed in the last lecture. ये है इसका गैट चार्ट. सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है P3. P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 1 यूनिट. इसका वेटिंग टाइम होगा 0 यूनिट और टर्न एग्जीक्यूशन टाइम होगा
1 unit. P2 is the next shortest job. Its burst time is 4 unit. Hence, it start at 1 unit of time and end at 5 unit of time. Next shortest job is P4. Its execution time is 5 unit. So it starts after the executions of P2. So it starts at 5 unit of time and end at 10. And the largest job in this data is P1. It start at 10 and end at 16. This is the average waiting time is calculated. Average waiting time for P1. Waiting time for P3 is 0 unit. Waiting time for P2 is 1 unit. Waiting time for P4 is 5 unit, and waiting time for P1 is 10 unit. So the average waiting time is equal to 4. Similarly, average turnaround time is calculated. The completion time of P3 is 1. The completion time of P2 is 5. The completion time of P4 is 10, and completion time of P1 is 16. So adding this and dividing it is equal to 8. So average turnaround time is 8 unit. Now examples of shortest remaining time first. This is the preemptive version of SJF. Now the arrival times is different. P1, P2, P3, P4. P1 arrives at 0th time, P2 at 1, P3 at 2 unit of time, and P4 at 3 unit of time. This is the arrival times, and the burst time is P1 requires 8 unit of time, P2 require 4 unit of time, P3 9 unit of time, and P4 5 unit of time. Now this is preemptive SJ Gantt chart. Now P1 arrive at 0th unit of time, so it is the smallest job. So it enters in the processor. After executing 1 unit of time, the processor finds that one job, that is P2, entered into the queue, and its execution time is 4 unit. Now the job P1 has consumed its 1 unit of time. It initially was 8 unit of time, and it consumed its 1 unit of time. Then the 7 unit of time remains. That is, it has to execute another 7 unit of time for completes its execution. But in between, P2 arrive and its burst time is 4 unit. So 7 and 4, the P1 will take 7 unit of time and P2 takes 4 unit of time. Though here in between P1 and P2, P2 is smallest, that is P2 require smaller amount of time. So P1 and P2 will enter into the processor, and it executes 4 unit of time. It executes its full reserve time. In between this, P3 and P4 also come, but they take much larger time than P2. इस बीच में P3 और P4 भी आ गया, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम P2 से ज़्यादा है. इसीलिए
P3 और P4 से कम, मान लीजिए कि 1 यूनिट ऑफ टाइम पे P2 आया, फिर P3 सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम में एंटर किया, तो दोनों में कंपैरिजन करके देखा गया कि नहीं, P2 ही स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए P2 will remain in the processor. Next, P4 comes. P4 takes 5 unit of time and compare with P2. It is find that P2 is again smaller than P4. So P2 will remain in the processor and execute its full 4 unit of time. Next, in the remaining process, this is P3 and P4. P4 is smallest, so P4 enters into the processor and it executes its full time, that is 5 unit of time, and then P3 executes. In this way, the average waiting time is calculated. Now P1 first start at 0 time, but it only completes its 1 unit of time. So its starting time, it has to wait, that is it has to wait, the P1 process has to wait, first is 0th unit time, and in the second time when it enters into the processor, it has to wait 10 minus 1, that is P1 start at 10 and P1 ends at 1. So in between 10 and 1, then P1 enters into the processor. Therefore waiting time for P1 is 10 minus 1. Now waiting time for P2. P2 arrive at 1 unit of time, and in the 1 unit of time it enters into the processor. So it has waiting time is 1 minus 1, that is it has waiting time is 0. Now P3 enters into the processor at 17th unit of time, but it arrives at 2 unit of time. So its waiting time is 17 minus 2, and similarly the waiting times of P4 is 5 minus 3, and it is calculated by dividing it by 4 is equal to 26 divided by 4 is equal to 6.5. Similarly, average turnaround time is calculated. For P1, its turnaround time is, that is completion time is 17 unit. For P2, its completion time is 5 unit. For P4, its completion time is 10 unit. And for P3, its completion time is 26. Hence the average turnaround time is 14.5 unit. Round robin scheduling. What is its feature? इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस को एक फिक्स टाइम स्लॉट अलॉट होता है in between 10 to 100 milliseconds. After this time has elapsed, the process is preempted. अगर ये फिक्स टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है तो प्रोसेसर्स जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसको वहां से रिलीज कर दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस का एंट्री होता है. The process which is preempted but its execution time is not over. Suppose that we allot 10 millisecond to a process and its execution time is 20 millisecond. Now if the 10 millisecond time is over, then it is preempted from the queue, from the processor, and it is added to the ready queue at the end. क्योंकि इसको फिर से और 10 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करना है, इसलिए फिर से इसको रेडी क्यू में ऐड किया जाता है. इसी तरह से मान लीजिए कि n प्रोसेस है लेकिन सीपीयू एक ही है, तो सीपीयू का जो टाइम है
वो n प्रोसेस में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से एक सिंगल प्रोसेस को नेक्स्ट स्लॉट आने में उसको n-1 इंटू क्यू, दैट इज क्यू इज टाइम क्वांटम, that is here I have taken 10 milliseconds, between 10 to 100 milliseconds we can take. Q is time quantum. तो कोई भी एक प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो एक बार में नहीं होगा, वो बार बार प्रोसेस रेडी क्यू में रिज्यूम करेगा और प्रोसेसर में जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरह से एक प्रोसेस मान लीजिए कंप्लीट नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट उसका स्लॉट आने में उसको n-1 इंटू क्यू टाइम वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई इफ देयर इज 5 प्रोसेस एंड ईच प्रोसेस इज एलोटेड 10 मिलीसेकेंड्स ऑफ टाइम, बट ये 10 मिलीसेकेंड्स में कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस जब स्टार्ट हो रहा है तो उसको 10 मिलीसेकेंड्स टाइम एलोट हुआ और नेक्स्ट उसका जो स्लॉट आएगा आफ्टर n-1 इंटू क्यू, दैट इज 5-1 इंटू 10, 5-1 मीन्स 4 इंटू 10, 40। आफ्टर 40 मिली सेकेंड्स के बाद उसको फिर से और एक टाइम एलोट होगा प्रोसेसर्स के लिए। जब भी प्रोसेस का टाइम ओवर हो जाता है तो एक इंटरप्ट आता है जिसको कहते हैं टाइमर इंटरप्ट। वो जैसे ही टाइम क्वांटम खत्म हो जाता है तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को शेड्यूल करता है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसको प्रीएम्प्ट करके नया प्रोसेस को प्रोसेसर में शेड्यूल करता है। इसका परफॉर्मेंस क्या है? अगर क्यू टाइम क्वांटम अगर लार्ज होगा तो ये जस्ट लाइक फीफो जैसा बिहेव करेगा। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप। और क्यू अगर बहुत छोटा होगा, क्यू छोटा ही होना चाहिए, क्यू अगर बहुत छोटा होगा तो इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विच से भी छोटा हो जाए। कॉन्टेक्स्ट स्विच मीन्स व्हेन ए प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड इट्स इंफॉर्मेशन इज सेव्ड टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। जैसे कि प्रोसेस का बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, अगर प्रोसेस को प्रीएम्प्ट किया जाएगा, उस वहां से रिलीज किया जाएगा तो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अलग मेमोरी स्पेस में स्टोर किया जाता है, तो इसमें टाइम लगता है। इस टाइम को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो टाइमिंग है वो भी बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम लोग क्यू दैट इज टाइम क्वांटम को अगर बहुत छोटा कर देंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विच से भी छोटा हो जाएगा। तो बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ओवरहेड ज्यादा हो जाएगा। एक प्रोसेस एंटर किया, फिर हम दूसरा प्रोसेस को एंटर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच का यूज करेंगे, तो इसमें बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच का यूज करने से ओवरहेड ज्यादा होता है, इसीलिए परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। एक एग्जांपल लेते हैं राउंड रोबिन। इसमें टाइम क्वांटम हम लोग ले रहे हैं 20, दैट इज ईच प्रोसेस इज एलोटेड 20 यूनिट ऑफ टाइम, इट मे बी मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स। इसमें 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। ईच हैव बर्स्ट टाइम 53, 17, 68 एंड 24। ये है गैट चार्ट। इसमें P1 को 20 मिलीसेकंड अलॉट किया गया है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 53 यूनिट, लेकिन ये इसका जो टाइम स्लॉट है 20 मिलीसेकंड्स है। इसके बाद इसका 20 मिलीसेकंड जैसे खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट P2 एंटर करेगा। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 17 यूनिट, इसीलिए 20 यूनिट से पहले ये खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट है P3। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 68 यूनिट, बट फर्स्ट राउंड में इसको 20 मिलीसेकंड अलॉट होगा, इसलिए अप टू 57 यूनिट टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर P4 आएगा,
इस तरह से। फिर P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 24 यूनिट और इसको अलॉट होगा 20 मिली सेकेंड्स। इस तरह से फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होगा आफ्टर 77 यूनिट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 77 फर्स्ट राउंड खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा और इसी तरह से P1, उसके बाद P3 क्योंकि P2 खत्म हो चुका है, उसके बाद P4, उसके बाद P1, उसके बाद P3, उसके बाद P3। इस तरह से ये प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन के लिए एंटर करेगा। इसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम शॉर्टेस्ट ऑफर से ज्यादा होता है और रिस्पांस टाइम भी ज्यादा होता है। एवरेज वेटिंग टाइम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे P1 फर्स्ट प्रोसेस, इट इज एंटर्ड इनटू द प्रोसेसर, तो इसका जो वेटिंग टाइम है 0 - 0। हम पहले जैसे कि आप देख रहे हैं 0 - 0, इसके बाद 77 - 20 और 121 - 97। ये जो पोर्शन है ये P1 के लिए है। जैसे यहां पे देखिए ये 0th यूनिट में स्टार्ट हुआ है और 0th इसको वेट करना पड़ा 0 - 0, दैट इज 0। फर्स्ट जब राउंड स्टार्ट हुआ था तो इसका वेटिंग टाइम है 0 - 0। इसी तरह से सेकेंड राउंड जब स्टार्ट हुआ तब 77 यूनिट ऑफ टाइम में स्टार्ट हुआ है और ये P1 खत्म हुआ था, P1 खत्म आपका हुआ था 20 यूनिट ऑफ टाइम में खत्म हुआ था और 77 यूनिट ऑफ टाइम में फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। तो कितना देर वेट करना पड़ा सेकेंड राउंड के लिए? 77 - 20, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 77 - 20। इसी तरह से थर्ड राउंड जब स्टार्ट हुआ तो ये थर्ड राउंड स्टार्ट होने का टाइम है 121 यूनिट और P1 खत्म कब हुआ था? 97, तो इसीलिए 121 - 97। तो इस तरह से P1 का जो वेटिंग टाइम है 0 और इसके बाद 77 - 20 एंड 21 - 97। इसी तरह से P2 के लिए स्टार्टिंग टाइम, फर्स्ट राउंड का स्टार्टिंग टाइम 20, लेकिन वो 0th टाइम में आया था, इसलिए 20 - 0, क्योंकि P2 एक ही बार पे एग्जीक्यूट कर चुका है, इसलिए फर्दर हम इसको प्रोसेस नहीं किए। P2 का टाइमिंग है 17 यूनिट, तो 20 माइनस, इसको वेट करना पड़ा 20 - 0 यूनिट वेटिंग टाइम। इस तरह से P3 का वेटिंग टाइम है 37 - 0। ये 37 यूनिट में ये एंटर हुआ है फर्स्ट राउंड में और इसी तरह से सेकंड राउंड में ये एंटर करने में इसको टाइम लगा 97 - 57। इस तरह से ये कैलकुलेट होता है एवरेज वेटिंग टाइम। और जितने भी वेटिंग टाइम है उसको 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि बाकी सब प्रोसेस शेड्यूलिंग में करते हैं। तो इसका टाइम एवरेज वेटिंग टाइम हुआ 73 यूनिट। इस तरह से एवरेज टर्न अराउंड टाइम 134 मीन्स द कंप्लीशन ऑफ P1। जैसे आप देख रहे हैं 134, यहाँ पे 134 है, 134 में यूनिट में ये कंप्लीट हुआ था और इसी तरह से P2 कंप्लीट हुआ था 37 और P3 कंप्लीट हुआ था 162 और P4 कंप्लीट हुआ था 121। ये सबको जोड़ के 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 113.5। ये हो गया इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं टाइम क्वांटम 4। अगर हम लोग टाइम क्वांटम को चेंज करते हैं तो उसमें क्या असर पड़ता है, इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं।
सेम प्रोसेस है, इसमें 4 यूनिट ऑफ टाइम हम लोग एलोकेट किए हैं सबको। इसका टर्न अराउंड टाइम इज हायर देन एसजेएफ। इसको हम लोग एसजेएफ में भी किए थे, लेकिन उसके मुकाबले में यह ज्यादा है इसका टर्न अराउंड टाइम। अगर हम लोग टाइम क्वांटम चेंज करते रहेंगे तो टाइम क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विच में एक में से कौन सा टाइम शॉर्ट होना चाहिए वो दिखाया गया है। टाइम क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विच, जैसे हम लोग बोल रहे थे, कॉन्टेक्स्ट स्विच इज अ टाइम which is required for a system to save all the information of the process. तो Q is usually 10 milliseconds to 100 milliseconds. इस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विच should be less than 10 microseconds. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया है। अगर इसे ये फुलफिल नहीं होगा तो इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो ज्यादा हो सकता है कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे कि अलग अलग तरह का क्वांटम, टाइम क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विच दिया गया है। जैसे फर्स्ट प्रोसेस में प्रोसेस का टाइम है 10 यूनिट और टाइम क्वांटम दिया गया है 12। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम अगर 10 मिली सेकेंड्स होगा तो एक ही स्लॉट में ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो इसीलिए कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच का जरूरत नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइमिंग हो गया 0। अगर हम लोग 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं तो, और टाइम क्वांटम इसमें दिया गया है 6 यूनिट, तो 10 यूनिट को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, 6 यूनिट और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 4 यूनिट में एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें एक कॉन्टेक्स्ट स्विच लगेगा। इस तरह से क्वांटम को हम लोग 1 में, टाइम क्वांटम अगर 1 मिली सेकेंड लेंगे तो इसमें 9 कॉन्टेक्स्ट स्विच लगेगा। 9 कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब जैसे कि एक प्रोसेस, जैसे ये हो गया फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 कॉन्टेक्स्ट स्विच इसमें लगेगा और 9 कॉन्टेक्स्ट स्विच का अलग अलग टाइमिंग होगा। ये ओवरहेड इसको में ज्यादा होगा। अभी तक हम लोग जो देखे हैं कैसे बस टाइम कैलकुलेट करते हैं। बस टाइम के लिए एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला में हम लोग एस्टिमेटेड टाइम ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बस कैलकुलेट करते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव एसजेएफ शेड्यूलिंग में क्या डिफरेंस है वो लोग आप लोग देखें। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में जो फर्स्ट जो जॉब सीपीयू में एंटर करता है वो तब तक रहता है सीपीयू में जब तक उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट ना हो जाए। प्रीएम्प्टिव में जो जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हटाया भी जा सकता है अगर दूसरा इंपॉर्टेंट जॉब आ गया तो। इसके बाद हम लोग देखें राउंड रोबिन एल्गोरिथम। इन राउंड रोबिन एल्गोरिथम ईच जॉब इज एलोटेड, एक जॉब को एलोट किया जाता है तो एक फिक्स टाइम स्लॉट। अगर ये टाइम स्लॉट में पूरा नहीं होता है तो नेक्स्ट राउंड में आ जाता है। टाइम स्लॉट दैट इज इट इज कॉल्ड क्वांटम। टाइम क्वांटम और कॉन्टेक्स्ट स्विच में एक रिलेशन होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच हमेशा टाइम क्वांटम से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्करेंसी, प्रोसेस कॉन्करेंसी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।